Now we are going to discuss some problems, some questions based on charges and its properties, whatever we have discussed in last 2-3 classes. And yeah, we'll try to cover almost like all types of questions, but again there are varieties of questions. I'll try to put a worksheet in the description. Okay, so let's start with this. Hope you remember whatever we have discussed before, that is charges and its properties. First I thought to write the questions, then I take pictures from a book, give a nice question, so it's okay. See the first question. A glass rod is rubbed, means it covers like almost all the types which we will be discussing. So the first thing, let's talk about that. Before going through that question, the basic thing which is required is the concept of quantization. Q is equals to plus minus Ne. That is, whatever charge develops on a particular body, that will be in the integral multiple of E. तो अगर बॉडी से ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज रिक्वायर करेगा, और इक्वल अमाउंट में, और फिर जो चार्ज की वैल्यू होगी दैट विल बी n टाइम्स ऑफ E. सो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉडी पे -1 कूलम का चार्ज है, तो ये बताओ इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर मान लो इस पर -1 कूलम चार्ज है, दिस इज द चार्ज विच वी हैव गॉट -1 कूलम, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से -1 कूलम का चार्ज है. तो कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और माइनस में. सो बेसिकली वी आर कंसर्न अबाउट द नंबर, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस, that negative and positive basically comes because of that whether it is gaining the electrons or whether it is losing the electrons. So here it is gaining some electrons, and we need to find out that number. So effectively it comes out to be like 1 is equals to, because charge is 1, is equals to n we don't know, and E is 1.6 × 10⁻⁻19. So it's very basic mathematics. You take this, it will go into the division, and n will come out to be as 1 divided by 1.6 × 10⁻⁻19. Effectively it becomes plus 19, and it goes as 6.25 × 10⁻18. I'll write it here, 6.25 × 10⁻18. It's a huge number. That means इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने न्यूमेरिकल नंबर में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज डेवलप होगा. So that is why 1 कूलम charge is a big charge. Anyway, we have not discussed this question till now, so we have to cover up this question, what exactly it means. Let's try to cover up. A glass rod is rubbed with a silk cloth. कोई ग्लास का रॉड है, उसको सिल्क के कपड़े के साथ ऐसे रब किया गया. So the glass rod acquires a charge of plus 19.2 × 10⁻⁻19. कहने का मतलब ये है कि जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा. ओके, और सिल्क क्लॉथ ने ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा. तो इमेजिन लाइक दिस इज अ ग्लास रॉड, एंड हियर वी हैव अ सिल्क क्लॉथ. सो जो ग्लास रॉड है उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो दैट इज व्हाई इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ एक्वायर्ड negative charge, equal amount. Let this charge be Q, that is equal to 19.2 × 10⁻⁻19. Now the question is find the number of electrons lost by glass rod. So obviously Q is equals to Ne apply करो. From here you will get something like N निकालना है, E you know, Q you know. So effectively N will come out to be as Q over E. Eventually it turns out to be 19.2 × 10⁻⁻19 divided by 1.6 × 10⁻⁻19. This gets cancelled out. It will be 12, I think. Yeah, 12. So effectively 12 electrons must have transferred from the glass rod to the silk cloth. Find the negative charge acquired by the silk. Same amount, and minus 19.2. Second part.
of the question, minus 19.2 into 10 to the power minus 90. So yeah, and is there transfer of mass from glass to silk? Now glass has lost electrons and silk has gained electrons. So effectively obviously जब glass ने electrons lose किया है तो glass से कुछ ना कुछ mass भी transfer हुआ होगा. तो is there transfer of mass from glass to silk? Yes, there is a transfer of mass from glass to silk. कितना मास ट्रांसफर हुआ है? तो 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, बट इट्स फाइन, यू कैन जस्ट take whatever it is given in the question, 9 into 10 to the power minus 31 kg. So कितना मास ट्रांसफर हुआ है वो भी निकाल सकते हो, although negligible है तो you can simply neglect it, but as the question has been asked, so you need to tell. Yeah, sometimes in this type of situation they may also ask you the time, the concept of time. Let's try to understand that. Imagine like there is a body A and there is another body B. दोनों न्यूट्रल हैं अभी. There are 10 raised to the power 10 electrons being transferred every second from body A to body B. Every second there is a transfer of 10 to the power 10 electrons जो A से B की तरफ जा रहे हैं. So question पूछा गया in how much time A will acquire 1 coulomb charge. Plus 1 coulomb. Anyway, remember B cannot acquire 1 coulomb because it is gaining electrons, so it will acquire minus 1 coulomb and it will acquire plus 1 coulomb. So कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं 1 coulomb चार्ज के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होने चाहिए. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएगा Q by E से. We calculated also Q is 1, E is whatever it is, 1.6 into 10 to the power minus 19, so it will come out to be 6.25 into 10 to the power 18. Now इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना है, इतने पर सेकेंड हो रहे हैं. देखो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हाँ 100 रुपये मुझे इकट्ठे करने, मेरे पास 2-2 रुपये के सिक्के हैं. Imagine like I have 2 rupees coins and I have to collect like some 100 rupees. So how many number of coins you need? Effectively 50, because 100 divided by 2. So in the same way, this is the number we have to make out, that is 6.25 into 10 raised to the power 18, and every second there is a transfer of 10 to the power 10. So in 2 seconds it will be 10 to the power 10 into 2, in 3 seconds it will be that, and so on. So if we need to find time, that means जितना टोटल चार्ज मुझे चाहिए, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाय पर सेकेंड जितने ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज 10 to the power 10. So if you, it comes out to be 10 to the power 8, effectively 6.25, or here I'll write 6.25 into 10 raised to the power 18, 10 raised to the power 8 seconds. Now remember, it is in seconds, it doesn't mean it is small. It is a way big number. It will come out to be, I think, in years, because एक normal सी चीज़ है कि if you think that way, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 hours, और एक घंटे में 60 minutes होते हैं, एक घंटे में 3600 seconds होते हैं, 3600 seconds. Just check the order. 24 hours means ये 10 के ऑर्डर में है, ये 3600 seconds एक घंटे में है. तो इफेक्टिवली एक पूरे दिन में 10 to the power 3 के ऑर्डर में सेकेंड्स होते हैं एक दिन में. अगर मैं एक साल की बात करूँ तो साल 365 डेज होते हैं. आई एम जस्ट डूइंग द ऑर्डर, सो ऑर्डर इज 10 स्क्वायर. सो इफेक्टिवली एक पूरे साल में 10 to the power 5 के ऑर्डर में सेकेंड्स होंगे. यहाँ 10 to the power 8 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 3 years more. It's a long time. So you can think of that 1 coulomb itself is a way big charge, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से भी, मतलब 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तब भी इसको पहुंचने में 10 to the power 3 years के अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग रहा है. So it's a lot of, means it's a huge time. Anyway, moving to the next question. This is a subjective one, logical. If an object made of substance A is rubbed with an object made of substance B, think of that I have a substance A and I have another substance B, and then there is another substance C. Then
इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए इज रब्ड विद एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस बी, अगर ए को बी के साथ रब किया जाता है, ए को बी के साथ जब रब किया जाता है तो देन ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, A becomes positive and B becomes negatively charged. That means B की स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने की स्ट्रेंथ थी, वो ज़्यादा थी और A की स्ट्रेंथ कम थी, इसलिए A ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, B ने इलेक्ट्रॉन अपने होल्ड करके रखे और इसने गेन किया. If however an object made of substance A is rubbed against an object made of substance C, then A becomes negatively charged. Now if A is rubbed with C, then A becomes negatively charged, and C becomes positively charged. मतलब just try to understand. इलेक्ट्रॉन बाउंडिंग स्ट्रेंथ देखते हैं सबसे ज़्यादा. इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें तो C की कम थी, इसलिए C ने A को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और A ने गेन कर लिए. बट अगर मैं A और B में देखूँ तो फिर B की ज़्यादा थी और A की कम थी कि A ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए थे. सो इफेक्टिवली आई कैन से दैट कि B जो है उसने सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड किया हुआ है अपने पास, फिर उसके बाद A और फिर उसके बाद C. ये इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, जो भी उसके अंदर चार्जेस हैं वो उसको रिलीज करने की कैपेबिलिटी, क्योंकि A और B में से A ने दिया था, A और C में से C ने दिया है. सो इफेक्टिवली C सबसे वीकेस्ट लिंक है. सो इन दैट सिचुएशन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मीन्स उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस B इज रब्ड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस C. सो अगर B को C के साथ रब किया जाता है तो क्या होगा? तो B तो वैसे ही रिलीज नहीं करने वाला, बिकॉज B इज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सिचुएशन एंड C वीकेस्ट लिंक है यहाँ पे. So in that case again C will release the electrons, B will gain it, so B will become negative and C will become positive. Whichever option is correct. B becomes negatively charged and C becomes positively charged. I think this is option number C. This is correct. So see, just try to imagine the situation और उसको दिमाग में बनाने की कोशिश किया करो. Means try to create a picture in your brain and then only you can get the result. So जो भी दिया गया है उसके अगर आप डायग्राम बना सकते हो that's very good, नहीं बना सकते तो भी इमेजिन करने की कोशिश किया करो कि हो क्या रहा है. सो दिस इज़ द सेकंड टाइप. इसमें बहुत तरह की चीज़ें पूछी जाती है कि A को B से टच कर दिया गया, B को C से टच कर दिया गया, तो बताओ क्या होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो फॉर दैट आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल होता नहीं है, जस्ट जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को आपको डेवलप करना होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Objects A, B and C are three identical insulated spherical conductors. Originally A and B have charges of plus 3 millicoulomb, whereas C, again make it, objects A, B and C are three identical insulated spherical conductors. अब ये तीन conductors हैं, identical हैं, spherical हैं. Let's name them as A, B and C. Originally A and B have charges of plus 3 millicoulomb. A और B के पास, दोनों के पास जो चार्ज है वो प्लस थ्री का है, मिलीकुलम को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए. whereas C has a charge of -6. Okay, cool. Objects A and C are touched and moved apart. A और C को टच किया गया. So now coming on the situation, it is a very famous type. जब A और C को टच करेंगे, so this is A, this is C, this has a charge +3, this has a charge -6. So eventually as we discussed in conduction, जब वो identical bodies हैं तो फिर equally transfer होगा. So +3 और -6 का नेट हुआ -3, और जब -3 हुआ तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो -3/2 और इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो भी आ जाएगा -3/2. किया क्या, ध्यान देना, +3 -6 comes out to be -3. अब ये -3 दोनों में बटना है ना, so divided by 2, -3 divided by 2, -3 divided by 2, A and C. ऑब्जेक्ट्स A and C are touched and moved apart. अब इनको अलग अलग कर दिया. सो अब A के पास फाइनल चार्ज है -3/2 और C के पास चार्ज है अगेन -3/2. दिस इज द सिचुएशन. ऑब्जेक्ट्स B and C are touched before they are moved apart. Objects B and C are touched before they are moved apart. Now B and C are touched. This is 3, this is -3/2. So if B and C are touched, in that situation, what will happen? 3 -3/2, so it will become -3/4. Next condition coming on that. If we take the next situation here,
बी और यहाँ पे आया सी। बी के पास है 3+3 और सी के पास है -3/2। सो इवेंचुअली इनका एडिशन हो गया, इवेंचुअली इसका एडिशन हो गया। सो फिर ये बना 3 और -3/2, इफेक्टिवली बना +3/2। दिस इज द टोटल चार्ज, बट ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, सो डिवाइड बाई 2। सो इफेक्टिवली इस पे आ गया 3/4 +3/4 और इस पे आ गया +3/4। सो फाइनल सिचुएशन ये है कि इस पे जो चार्ज है वो है +3/4, इस पे जो चार्ज है वो भी है +3/4 और इस पे तो -3/2 था ही। ये कंडीशन है। क्वेश्चन पूछा गया है, if objects A and B are now held near each other, objects A and B are now held near each other, they will attract, repel or have no effect. This is minus, this is plus. So negative positive एक दूसरे से attract करते हैं, so that will be the condition. अगर यहीं A और C को hold करवाते तो नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर से अट्रैक्ट ही करते, दैट इज द सिचुएशन। B एंड C को करवाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा। सो दिस इज वन टाइप, दिस इज अ कंडीशन जो कि नॉर्मली दी जाती है। Moving on, this is figure 1.6 shows that a positively charged rod is brought near two uncharged metal spheres A and B, clamped on an insulated stands and placed in contact with each other. What would happen if the rod is removed before the spheres are separated? Okay, see, we discussed this situation actually before. So what happened before that, there is a, I think we discussed the same example in the class, in the previous video. We have A and B, two metal objects, एक rod को जो कि charged है, insulated stands and placed in contact. What would happen if the rod is removed before the spheres are? ये एक positively charged rod है और ये अनचार्ज मेटल स्फीयर है, तो जैसे ही पॉजिटिव को लेके आएंगे तो नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे और फिर दूसरी तरफ पॉजिटिव चले जाएंगे, ठीक है। What would happen if the rod is removed before the spheres are separated? अगर रॉड को पहले ही ले गए और स्फेयर्स अभी भी अटैच्ड ही हैं तो क्या होगा, नेगेटिव दोबारा ऐसे ट्रैवल कर जाएंगे, पॉजिटिव मतलब इधर आ जाएंगे और फिर से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वापस आ जाएगा। सो नथिंग विल हैपन, दोबारा से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और न्यूट्रल ही रहेंगे, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। जब वो पास रहेगा तो उस टाइम पे सेपरेशन रहेगा। Would the induced charges be equal in magnitude even if the spheres had different sizes or different conductors? Yes, this will be perfectly same because अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं और फिर जब ये इंडक्शन किया है तो टोटल चार्ज कंजर्व है, तो नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो था, नेट चार्ज बाद में भी इसको ज़ीरो ही होना है क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन, वी हैव डिस्कस्ड दैट प्रॉपर्टी। What will happen if the spheres are separated first and then the rod is removed far away? Now अगर इसको पहले सेपरेट कर दिया, सो अगर इसको यहाँ से सेपरेट कर देंगे, सो इन दैट केस नेगेटिव नेगेटिव साइड में रह जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में रह जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड दिस सिचुएशन। सो इन दैट केस द बॉडीज विल गेट चार्ज्ड, एक पे ए पे नेगेटिव आ जाएगा, बी पे पॉजिटिव आ जाएगा, दैट विल बी द कंडीशन। Moving on, calculate the total positive charge on a 3.11 gram copper penny given Avogadro's number this, for copper atomic number this and atomic mass. Okay, for solving these kind of problem you should know mole concept, that is class 11th, और मतलब आना चाहिए, तभी आप इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो और ये बहुत बेसिक टाइप है एक। What exactly mole concept is, मैं एक brief overview दे देता हूँ। Yeah, so coming over here, basically mole is a number. You can say that Na, let's say Na is what we call as Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23. This is the number. Basically one mole you can simply consider it as a dozen. Let's consider it as a dozen. So जैसे डजन में एक नंबर होता है 12, कुछ भी हो सकता है, 12 दर्जन सेब हो सकते हैं, 12, it can be like a dozen of apple, it can be a dozen of cars, a dozen of people, it can be anything. A dozen is a number. In the same way a mole is a number. That the difference is that the mole is a number which is big, 6.022 into 10 to the power 23. So if I say 1 mole copper atom, so मेरा कहने का मतलब होता है Na number of copper atoms. सेम भी अगर मैं कहता हूँ 1 mole of aluminium atom, then Na number of aluminium atoms. अब ये कॉपर एटम और एल्यूमिनियम एटम ये अलग अलग हो सकते हैं,
इनका अपना अपना डिफरेंट वेट हो सकता है, कोई एटम छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। किसी का मास ज़्यादा हो सकता है, किसी का मास कम हो सकता है, बट जो नंबर है वो सेम ही रहेगा। अगर मैं 1 मोल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, सो वाटर इज H2O, सो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अब उसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे? सो एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, सो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स में 2 मोल्स हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन एटम्स, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। वी बेसिकली हैव टू गेट दिस फैक्ट क्लियर दैट कि जब हम मोल के बारे में बात करें, सो इट इज जस्ट द नंबर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब केमिस्ट्री क्या कहती है कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेता हूँ तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का मास नंबर 23 होता है, मतलब एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली 23 होता है। तो अगर मैं 23 ग्राम्स सोडियम एटम लेता हूँ, सोडियम एटम्स लेता हूँ, तो उसमें अवोगैड्रो नंबर यानी कि Na 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। लेट्स कंसीडर इट एज x नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करेंगे उसके अंदर। दूसरी चीज़ लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 112, ऑक्सीजन 16, सो इफेक्टिवली 18। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ कही जाए कि अगर मैं 18 ग्राम्स वाटर लेता हूँ, लेट्स से आई टेक 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, सो 18 ग्राम पानी में 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये चीज़ समझने की है, दैट्स इट। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि हाँ, से फॉर एग्जांपल यू हैव 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले आप मोल निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो अगर 18 ग्राम 1 मोल है, इमेजिन, तो 50 ग्राम कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। 1 मोल के अंदर इमेजिन 12 होते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। यहीं से कुछ लोग एज सच फॉर्मूला ये रट लेते हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। कोई एज सच याद करने की चीज़ नहीं है, बेसिक यूनिटरी मेथड है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एनीवे, सो दिस इज द सिचुएशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मोल कॉन्सेप्ट। ये इसी की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन जब कहा गया है, तो 12 ग्राम कार्बन में C12 होता है, 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स, क्योंकि कार्बन के एटम्स छोटे हैं। सेम वे कॉपर के एटम्स बड़े हैं, तो 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर में 1 मोल, अगेन बिकॉज कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 होता है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब हर पर्टिकुलर सब्सटेंस मैटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, बिकॉज मैटर मतलब एलिमेंट और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो या तो आप पॉजिटिव बता दो या नेगेटिव बता दो, नंबर अगर आपको बताना है तो दैट इज सेम ओनली। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर पेनी, 3.11 ग्राम। अब मेरे पास 3.11 ग्राम कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं, 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। इसके अंदर मुझे बताना है कि कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। गिवन अवोगैड्रोस नंबर Na की वैल्यू आपको दी हुई है, मैं इसको Na ही लेके चल रहा हूँ, और Na को एक काम करते हैं x मान लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। x अज्यूम कर लेते हैं, x एक नंबर है, और या x एक पर्टिकुलर नंबर है जिसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ये अवोगैड्रो नंबर है। फॉर कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है दैट इज 29, और एटॉमिक मास 63.5, एटॉमिक मास भी दिया हुआ है 63.5। एटॉमिक नंबर क्यों दिया हुआ है? तो एटॉमिक नंबर से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चलते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमें पता चलेगा कितना पॉजिटिव चार्ज है। एनीवे, सबसे पहला काम तो मुझे ये देखना है कि 3.11 ग्राम कॉपर में, 3.11 ग्राम इज एन अमाउंट, उसको आप इज सम अमाउंट, उसको आप देख सकते हो कि हाँ ये 3 ग्राम है, 4 ग्राम है, 5 ग्राम है। इस 5 ग्राम में कॉपर के एटम्स कितने हैं, मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे। सो अगर मैं 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर लेता हूँ, तो उसमें मेरे पास x नंबर ऑफ कॉपर के एटम्स होते हैं, यहाँ पे x में अवोगैड्रो नंबर पे मान के चल रहा हूँ, दैट इज 1 मोल, 1 मोल। सो जब मैं 1 ग्राम कॉपर लूँगा तो उसमें x डिवाइडेड बाई 63.5 एटम्स होंगे, और जब मैं 3.11 ग्राम कॉपर लूँगा
तो होगा x डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 3.11। यहाँ पे x अननोन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। x इज अवोगाड्रो नंबर दैट इज गिवन 6.023 इंटू 10⁻23। सो इतने कॉपर में 3.11 ग्राम कॉपर में इतने एटम्स हैं कॉपर के। एक कॉपर के एटम में, एक कॉपर एटम में 29 प्रोटॉन्स होते हैं। सो दैट मीन्स 29 इंटू ई एक कॉपर एटम का चार्ज है, प्लस 29e, ये एक कॉपर एटम पे चार्ज है। सेम -29e इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज होगा, क्योंकि टोटल चार्ज 0 होना है। तो ये एक कॉपर एटम का है, इतने एटम्स हैं। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे? बेसिक मैथ्स है, मल्टीप्लाई दिस विद दिस। इफ यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द टोटल चार्ज ऑन दीज मेनी कॉपर एटम्स। कहने का मतलब वही है कि एक का अमाउंट 2 रुपये है तो 15 का कितना होगा? सो 2 इंटू 15 यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, इट विल कम आउट टू बी 30 or whatever it is, the value. So this will be the illustration number 5. And the last question, I think it is last, yeah, last question. It's really good actually. An electron and a proton initially separated by a distance d in the air. Imagine that we have an electron and a proton initially separated by a distance d in the air. This is electron, this is proton. Now there is a distance d. Now air in the air are released from rest simultaneously. दोनों को release कर दिया गया simultaneously. The two particles are free to move when they collide. Free to move, first thing. When they collide, are they at the midpoint of their initial separation, closer to the initial position, closer to the initial position of the electron? Okay, closer to the initial position of proton or electron. Try to understand. यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और दोनों के बीच में कुछ एक सेपरेशन है d जो दिया हुआ है। दोनों को रिलीज कर दिया गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेटर विल कैलकुलेट कि वो फोर्स कितना होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ यूजिंग दैट। एनीवे, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दोनों पे इक्वल चार्ज है, चार्ज इज सेम, बस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है जिसकी वजह से अट्रैक्शन है, बट दोनों का मास अलग है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वे लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू कहूँ, सो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और ऑलमोस्ट इतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है बस। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कहने का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब एक तरफ आपके पास 1 किलो है और एक तरफ आपके पास तकरीबन 2000 किलो है। सो दैट इज़ वाई जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 किलो है इमेजिन, तो फिर जो प्रोटॉन है वो 2000 किलो है। अब दोनों को बराबर फोर्स से खींचा जा रहा है, 2000 किलो वाले को भी उतने ही फोर्स से खींच रहे हैं और 1 किलो वाले को भी उतने ही फोर्स से खींच रहे हैं, और दोनों आपस में आ रहे हैं पास। तो एक अगर बेसिक दिमाग लगाया जाए तो एक भारी ऑब्जेक्ट है, एक हल्का ऑब्जेक्ट है, दोनों को बराबर फोर्स से खींचा जा रहा है। सो द ऑब्जेक्ट विच इज हैवियर विल ऑब्वियसली मूव लेस इन द सेम फोर्स, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज लाइटर विल मूव मोर in because of the same force, because force is equals to mass times of acceleration, and the acceleration will be more if mass is less. So this will go faster and this will come slower. Proton will come slower and electron will go faster. So effectively they are going to meet at a point which will be closer to the location of the proton, and they are not going to meet at the point which is at the midpoint or something. Basically इनके center of mass के पास जाके वो मिलेंगे. So this is the concept that it will meet somewhere closer to the proton side, closer to the initial position of the electron, closer to the initial position of the proton. This is option B. That will be the correct option. Remember, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम ऐड कर दें, if we add mass of neutron plus mass of proton, तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें अगेन आई एम सो सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किया जाता है तो न्यूट्रॉन मिलता है. सो बेसिकली, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, यू कैन से दैट. सो बेसिकली वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे नेग्लिजिबल है, बट न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है प्रोटॉन से, दैट इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक मास, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर. सो ऑलमोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन 2000 गुना हल्का होता है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में. तो सेम फोर्स की वजह से वो कम ज़्यादा मूव करेगा और प्रोटॉन कम मूव करेगा, इसलिए वो उनके सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे प्रोटॉन के पास. दिस इज द क्वेश्चन. अगर ये दोनों सेम मास के होते बाय चांस, सो इन दैट केस वो मिड पॉइंट पे जाके मिलते. अगर इलेक्ट्रॉन भारी रहा होता तो वो उसके पास जाके मूव करता मिलता. Okay, so these were few types of questions, few sets of questions based on properties of charges and characters. There will be many conceptual questions as well, and actually there are infinite types of questions. So you will get to know about the conceptual understanding only when you try the questions. So I'll try to post a worksheet based on whatever we have discussed till now, and try to solve that, and then in case if you have any questions you can ask me. Till then, have a good day, and in the next class we'll be starting with Coulomb's law. Thank you.